तो ये आप देख रहे हैं एक रेयर मेडिसिनल हर्ब। बेसिकली ये ऑर्किड है और ऑर्किडेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो नाम है डेक्टाइलोराइजा हेटेराजिया। इसको सालम पंजा या हथ पंजा भी बोलते हैं। और इसका जो ख़ास बात है कि ये मुझे आज एक्सीडेंटली जो है वो ये मैंने इसको डॉक्यूमेंट किया है एन रूट टू बारालाचा। सो मैं नहीं चाहता कि मैं इसकी जो लोकेशन है उसको डिस्क्लोज़ करूं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्लांट है। IUCN का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये सालम पंजा का। और ये जो दूसरी कैटेगरी में, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, क्योंकि बहुत कम इसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको जो है वो देखा जा सकता है। इसको मार्श ऑर्चिड भी कहते हैं। ये मार्श ऑर्किड जो है, अब आप देखेंगे कि यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि ये जो सॉइल है ये इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर प्लांट की किसी न किसी दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएशन देखी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो इसके साथ येलो कलर का जो ये प्लांट है इसको कहते हैं काल्था स्पीसीज, काल्था पैलुस्ट्रिस। और इसको भी मार्श मैरीगोल्ड कहा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ मार्शी सॉइल है वहाँ पर इस हैबिटेट को जो है, इस रेयर हर्ब को जो है, इसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो हमारे बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, जो रिसर्चर हैं, स्पेशली जो बॉटनिस्ट हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो फील्ड के अंदर जो प्लांट है वो कैसा दिखता है। दैट इज़ सालम पंजा। इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में इसका जिक्र करूँगा। और जैसे मैंने देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर critical endangered medicinal herb which is known as salam panja or hath panja. It is Dactyloryza heterogea. Is a basically orchid, so it is known as marsh orchid because it grows in marshy land. And the important observation is you can see this one is known as marshy marigold. So this is Caltha palustris species. So both these herbs or the plant grows in marshy soil, but this one is important because it is a critical endangered plant according to IUCN status, and it is also under endangered category. This is Hath Panja because its roots or the rhizomes, they are the shape of human hand, and you can see basically this is not the right time for uprooting. So even I do not want to disclose the location because there is lot of illegal extraction of this plant. You can see one more plant. This is one more plant of Salam Panja, and it is having a very high medicinal value in Ayurveda, in Unani system. This is another specimen. This one is one more specimen. This is another more specimen with Achillea malcifolia, this white one, and then this is the Salam Panja. So this is a very important habitat documented in Lahore, but the exact location I do not want to disclose, and it is having high density within the area of you can say let's assume 50 square meter. More than 50 Salam Panja plants you can record. So it's very having good density. So there are two more specimens.
So medicinal value of this plant is basically it is having aphrodisiac property. So any kind of sexual dysfunction, especially in male, pertaining to potency issues or sexual dysfunction and erectile problem, this is very important. That's why it is having high demand, international demand, and the root value, the tuber value is approximately 6 to 10,000 per kg. So there is a lot of illegal extractions by the herb collector, but to document its habitat is more important. It's wonderful to see plenty of specimens. You can see two more specimens. This is again one more specimens, and you see plenty of these violet color flowers. Is basically a very rare medicinal herb which is known as सालम पंजा. तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल हर्ब है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. इसको बोलते हैं सालम पंजा, सालम पंजा या हथ पंजा. बेसिकली ये ऑर्किड है, ऑर्किडेसी फैमिली से है ये. और जो ख़ास बात है कि ये एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड पौधा कहा जा सकता है, मेडिसिनल प्लांट कहा जा सकता है. और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. इसका जो IUCN स्टेटस है, एक्सीडेंटली जो है मुझे आज इसको डॉक्यूमेंट करने का मौका मिला, और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट के लिए ये दिखाना चाहता था कि इसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर ये सालम पंजा किस तरह का दिखता है. दिस इज़ डेक्टाइलोराइजा हेटेराजिया. ख़ास बात है इसके जो राइजोम और ट्यूबर्स होते हैं उसकी इलीगल एक्सट्रैक्शन की जाती है, और इसकी नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड बहुत है. बहुत सारे सिस्टम ऑफ थेरेपीज़ हैं जहाँ पर जैसे यूनानी है, आयुर्वेदा है, तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं उसमें एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बहुत सारी फार्मूलेशंस में ये इस्तेमाल होता है. ये देखिए कितनी ज़्यादा डेंसिटी है. आप प्लांट्स को भी काउंट कर सकते हैं कि 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर एरिया में भी आप देखें तो जो प्लांट्स की जो डेंसिटी है वो 10 से ज़्यादा है. ये देखिए दो और स्पेसिमन्स हैं. ये देखो कितनी खूबसूरत डेंसिटी को जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है. सो इट इज़ ए वंडरफुल डे टू डॉक्यूमेंट ए वेरी रेयर मेडिसिनल plant herb. Basically it is an orchid, and you can see the association with the Caltha palustris, येलो कलर का जो. तो ये जो प्लांट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं सालम पंजा, जिसको IUCN द्वारा क्रिटिकल एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, और ये ऑर्किड है वास्तव में, और इसको मार्श ऑर्किड बोलते हैं. क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो इसका जो हैबिटेट है, यहाँ पर वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर ज़्यादा है, और इसके साथ इसकी जो एसोसिएशन है वो पीले रंग का जो फ्लावर है जिसको काल्था बोलते हैं, ये भी मार्श मैरीगोल्ड बोलते हैं. तो यहाँ पर एक्सीडेंटली मैंने देखा कि एक हैबिटेट है जहाँ पर कहीं कहीं जो है ये सालम पंजा जो है वो नज़र आ रहा है. और सबसे इम्पोर्टेंट है ये इंडिया, नेपाल, भूटान और रशिया में जो है ये सालम पंजा जो है डेक्टाइलोराइजा हेटेराजिया पाया जाता है. सबसे ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है. और इसमें जो ये जो डेक्टाइलोराइजा हेटेराजिया है, ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये आयुर्वेदा में इस्तेमाल होता है, ये यूनानी सिस्टम ऑफ थेरेपी में इस्तेमाल होता है, ये तिब्बतन सिस्टम ऑफ जो मेडिसिनल थेरेपी है उसमें इस्तेमाल होता है, चाइनीज़ मेडिसिन थेरेपी में इस्तेमाल होता है. और इसकी ख़ास बात है इसका जो ट्यूबर और राइजोम है उसकी जो शेप होती है वो बच्चे के फिंगर की तरह होती है, जैसे बच्चे का हाथ होता है, इसीलिए इसको हथ पंजा बोला गया है. और जो इलीगल एक्सट्रैक्शन इसकी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसका हैबिटेट जो है वो डे बाई डे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है. ये एनरूट बारालाचा मेरे को एक नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि कहीं काल्था के साथ इसकी एसोसिएशन ना हो, और वैसे ही मुझे देखने को मिला. लेकिन इसका जो अपरूटिंग का जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर और नवंबर में.
इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो ऑर्किड है ये बेसिकली स्लो ग्रोइंग है, तो इसकी जो साइंटिफिक एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप पूरी अपरूटिंग करते हैं तो उससे जो है वो नेक्स्ट ईयर फिर ये उस जगह पर रीजनरेट नहीं करेगा। तो लोगों को मालूम नहीं होता, लोग इसकी अपरूटिंग करते हैं और एक्सेसिव अपरूटिंग होती है और इसकी वैल्यू और मार्केट में डिमांड बहुत है, 5 से लेकर 10,000 प्रति किलो के हिसाब से ये जाता है। और आयुर्वेदा जैसे मैंने कहा, और लद्दाख रीजन में भी जो है ये पाया जाता है, जहाँ पर वहाँ के जो हकीम होते हैं उनको बोलते हैं आम चीज़। ये जो आम चीज़ होते हैं वो आम चीज़ इसकी डिफरेंट फार्मूलेशंस में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये स्टोमक डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है, कफ कोल्ड के लिए यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा ट्यूबर का इस्तेमाल होता है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन में, इसका इस्तेमाल होता है। इसकी एफ्रोडिसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये इंटरनेशनल इसका ट्रेड होता है और ये मेल सेक्सुअल पोटेंसी को बढ़ाता है। इसका जो ट्यूबर है, इसका जो पाउडर है और डिफरेंट फार्मूलेशन के साथ जो है, इसीलिए इसकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक मुझे पैच दिखाई दिया और भी हमने डॉक्यूमेंट किए हैं जहाँ पर ये डक्टाइलोराइजा हेटेराजिया जो ऑर्किड है, लेकिन ये एक रेयर ऑर्किड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड ऑर्किड है और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने कहा कि जो मेन इसकी अपरूटिंग होती है ट्यूबर की, उसको मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा एक फोटोग्राफ, जो एक बच्चे के हाथ की तरह जो है ये दिखता है। और इसका जो राइजोम और ट्यूबर है उसकी मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, और इसीलिए जो है इसके हैबिटेट को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ये और भी फार्मूलेशंस, अगर आप लिटरेचर को देखें तो डिफरेंट एलिमेंट को जो है वो हीलिंग के लिए जो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मेल पोटेंसी, मेल फर्टिलिटी के लिए जो है इसके ट्यूबर का इस्तेमाल होता है। तो ये एक वैल्यूएबल प्लांट है हिमाचल प्रदेश का, और दिस इज़ एनरूट बारालाचा, और ये स्टूडेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा जो बॉटनिस्ट हैं या इथिनोबॉटनी में जो काम करना चाहते हैं। नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो डाइवर्सिटी है, जो डेंसिटी है रादर, वो अच्छी है इस छोटे से पैच में। तो ये इस जगह को मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता कि इस अदरवाइज़ जो है लोकेशन को जो अगर आप डिस्क्लोज़ करते हैं तो उससे इलीगल एक्सट्रैक्शन होने का जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो महत्वपूर्ण है कि जो भी हैबिटेट बचा है उसको आगे कंजर्व किया जाए, लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, और स्टूडेंट जो बॉटनिस्ट हैं उनको पता होना चाहिए ये डिफरेंट है, दिस इज़ डिफरेंट बट दिस इज़ द प्लांट। ये प्लांट है डक्टाइलोराइजा हेटेराजिया, एक दूसरा प्लांट है, और भी यहाँ पर प्लांट लगे हैं जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ, नीचे बहुत लगे हैं। तो इस तरह जो है ये जो जानकारी है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर विपिन राठौर, एनरूट बारालाचा, जून 2021।